Hello students, in organizing part first we have revised the meaning of organizing, the factors, the features of the organizing. Now in part second we are doing the formal and informal organizations, their advantages, disadvantages and the difference between them. So what is the formal and informal organization structure? So in the course of organizing we just come across with different types of organization structures. It is formal, informal, line and staff, divisional, functional, matrix, and few of those types of organization we'll discuss in our revision, which is a part of our syllabus. So now we start with the part of formal and informal organization. So what is a formal organization? Formal organization is an organization structure which is designed and established by the management to achieve organizational goals. It is an official system of clearly defined activities and relationships. There is a systematic coordination among the various activities to achieve organizational goals. So organization structure जो कि एक ऑफिशियल सिस्टम में डिफाइन किया जाता है, जिसमें कि आपके रिलेशनशिप्स एक्टिविटीज क्लियरली डिफाइंड होता है, एक सिस्टमैटिक वे है, कोऑर्डिनेशन का एक प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट इज योर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस. व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ formal organizations? Defined interrelationships, right? As I have told you, a part of the definition, it clearly defines mutual relationship. Everybody knows their authority and responsibility. This clearly shows who will be reporting to whom. पूरा आपका म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है वो क्लियरली डिफाइंड है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है हर किसी की, और आपका किसको किसको रिपोर्ट करना है. देन सेकेंड, बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स. It has written rules and procedures which are to be followed to achieve the predetermined objective. Third, based on division of work. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं डिवीजन ऑफ वर्क पे डिपेंडेंट होती हैं और उनके बेसिस पर ही आपका डिवीजन ऑफ वर्क के बेसिस पे ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्रिएट होता है. इट कनेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद ईच अदर. तो अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्क को और एफर्ट्स को ये कनेक्ट करता है, और we can say in other words it coordinates the efforts of different departments to achieve the targets or goals of the organization. Fourth, deliberately create करा जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके. It is deliberately created by top management in order to achieve the objectives in an easy manner. Fifth is more stable. It is more stable as changes cannot be introduced as per the needs of individuals. It focuses on the jobs to be performed. तो स्टेबल है क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन कर रहे, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपका ये सेटअप बनाया जाता है. तो ये आपका बार बार बदल नहीं सकते क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आपके जो है बार बार नहीं बदले जा सकते. सो दैट्स वाई इट इज़ अ स्टेबल फॉर्म, और बहुत जल्दी से इसको चेंज नहीं किया जा सकता. और इट इज़ बेस्ड ऑन द ग्रुप activities, so it is not based on the needs of the individuals. More emphasis on work. The formal organization structure emphasizes on the work to be performed than interpersonal relationships among the employees. तो मेन जो होता है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसलिए होता है ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हों, वर्क जो परफॉर्म करने के लिए कहा है वो पूरे हों, ना कि एम्प्लॉयज़ के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करने के लिए. सेवंथ, डेवलप्स चेन ऑफ कमांड. इट क्रिएट्स अ स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन. आपका उस चेन को ही फॉलो करना होता है, किसको किसको ऑर्डर करना है और किसको किसको रिपोर्ट करना है, वो पहले से ही आपका एक सेटअप प्रिपेयर्ड होता है. उस चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना ज़रूरी है. Now, what are the advantages or merits of formal organization? It is a systematic working. क्योंकि आपका एक परफॉर्मेंस फंक्शंस का एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है, तो एक सिस्टमैटिक और स्मूथ फंक्शनिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन की होती है.
It provides a framework for the performance of all functions, which results in systematic and smooth functioning of an organization. Second, achievement of organizational objectives. It is established to achieve organizational objectives. मेन इसका पर्पस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, उसके गोल्स को अचीव करना. नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, क्योंकि आपका एक सिस्टमाइज्ड आपका डिवीजन होता है वर्क का, डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को. तो यहाँ पर जो आपके चांसेस है ओवरलैपिंग वर्क के या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के, वो नहीं होते. फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन. इट रिजल्ट्स इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स. तो ये आपके अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को जो है कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है. फिफ्थ, क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड. राइट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइंस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, दैट इज हु रिपोर्ट्स टू होम. सो एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड आपका दिया होता है, उसी चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना होता है कि किसको किसको ऑर्डर करना है और किसको कैसे और किसको रिपोर्ट करना है. सिक्स इज मोर एम्फेसिस ऑन वर्क. जो इनका मेन मोटिव है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का है कि वर्क डन थ्रू द पीपल. सो इट लेज मोर एम्फेसिस ऑन वर्क देन इंटरपर्सनल रिलेशन. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट, इट डिले इन एक्शन, क्योंकि एक स्केलर चेन और चेन ऑफ कमांड आपकी फॉलो करनी होती है, तो ये आपके एक्शंस को डिले कर देती है. जैसा हमने स्केलर चेन में भी देखा था कि अगर एक पर्सन को दूसरे लेवल पे जाके दूसरे पर्सन को देना है ऑर्डर, तो उसे फॉलो करना है चेन ऑफ कमांड एंड इट डिलेज. एक शॉर्ट चेन या आपका गैंग प्लैंक तभी यूज हो सकता है जबकि कोई इमरजेंसी हो. तो क्या होता है, इससे आपके एक्शंस डिले हो जाते हैं. देन सेकेंड, इग्नोर्स सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंटरपर्सनल रिलेशंस के लिए नहीं है. इसका मेन पर्पस सिर्फ क्या है, आपका वर्क टू बी डन थ्रू एंड विद द हेल्प ऑफ पीपल. तो इससे क्या होता है, उनकी साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स पूरी नहीं होती हैं, जिससे कि उनको मोटिवेशन नहीं मिलता काम करने का. Formal organizational structures does not give importance to psychological and social needs of employees, which may lead to demotivation. Third is emphasis on work only. It gives importance to work only. It ignores human relations, creativity, talent, etc. तो काम ही काम, कोई creativity, कोई human relation, कोई talent को आपका जो है उसमें कोई भी जो है importance नहीं दी जाती. Fourth, communication barrier. As a formal organization, a task needs a coordination of different departments. So communication needs to be clear in this process. Any kind of miscommunication may lead to ultimate inefficiency. तो यहाँ इसमें बहुत ज़रूरी है कि coordination आपका डिपार्टमेंट्स में हो और एक कम्युनिकेशन एक प्रॉपर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. अगर कहीं भी प्रॉपरली एंड क्लियरली कम्युनिकेशन नहीं गया तो आपके जो है एफिशिएंसी को अफेक्ट करेगा, राइट, और आपका ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अचीव नहीं कर पाएगा. द फिफ्थ पॉइंट, लैक ऑफ इनिशिएटिव. इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द एम्प्लॉयज हैव टू डू व्हाट दे आर आस्क्ड टू डू and they don't have a chance of some independent thinking. So it affects this is initiative, their creativity, right, and their talent cannot being used in the organization effectively. तो आपको जो काम कहा है वही करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना. इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है. दैट मीन्स आपका स्ट्रिक्ट जो है रूल्स फॉलो करने हैं उन्होंने. तो इस कारण से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी, उनकी जो है एफिशिएंसी इफेक्ट होती है. नाउ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं किया जाता, राइट, इट इज़ नॉट बीइंग क्रिएटेड, इट कम्स into existence due to the formal organization setup. एक formal organization बनती है, उसमें informal organization structure अपने आप ही create हो जाता है, right? तो informal organization refers to the relationship between the people based on personal attitudes, sentiments, likes and dislikes. It is a network of personal and social relationships not established or required by formal organization. It emerges on its own in a natural manner within the formal organization. तो अपने आप ही आपका नेचुरल मैनर में क्रिएट हो रहा है. क्यों? क्योंकि जब आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो उसमें अपने आप ही कुछ पर्सनल एटीट्यूड, सेंटिमेंट्स, लाइक डिसलाइक के बेसिस पे कुछ लोगों के ग्रुप हो जाते हैं और
जो ये नेटवर्क बनता है पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप्स पे, वो आपका क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर देता है। Salient features or characteristics of formal informal organization. First is formal organization जो है उसका सेटअप जो क्रिएट करता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से informal organizations are based on formal organization. This is based on formal organization where people also have informal relations. It means first of all formal organization is established and then informal organization is created out of it. Second, no written rules and procedures. In this organization there are no written rules and procedures to govern interrelationship, but उसकी जगह आपका क्या है, there are some group norms होते हैं जिनको कि फॉलो करना होता है। थर्ड, इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में एक आपका चेन ऑफ कमांड यूज नहीं हो रहा है, कोई एक वेल डिफाइंड चैनल नहीं यूज हो रहा है कम्युनिकेशन के लिए, बट द रिलेशंस अमंग डिफरेंट पीपल आर डिफाइनिंग व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशंस और व्हाट टाइप ऑफ communication they may have. At times the lower rank person can have communication with the higher rank person. In this organization, relations among different people are not defined because a person at the lowest rank can have direct contact with the person at the highest rank. Not deliberately created. It is not deliberately created. It emerges out of mutual relationships and similar taste. Deliberately नहीं create हुआ, मतलब कोई इसको सोच समझ के नहीं बनाया जाता, इसको फॉलो करना कोई ज़रूरी नहीं है, बट क्या होता है, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप्स और सिमिलर टेस्ट के कारण आपस में लोग बात करना शुरू करते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, और ये इनडेलिबरेटली ही आपका ये सिस्टम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएट हो जाता है। नो प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। जैसे कि हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो आपकी सारी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आपके मैनुअल फॉर्म में एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे डिपिक्ट की जा सकती हैं, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा नहीं किया जा सकता, इसको आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पर नहीं दिखा सकते। इट हैज़ नो प्लेस ऑन द properly prepared organization chart. Moreover, there is no information about it even in the organization manual. 6 is spontaneous. It emerges spontaneously and is not deliberately created by the management. तो हमने क्या कहा, वो आपका जो deliberately नहीं create होता, कैसे होता है create? Spontaneous, अपने आप ही create हो जाता है एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे की like and dislike के कारण। Complex in nature, it has no definite structure or form because it is a complex network of social relationship among people. Advantage, functions, merits of informal organizations. क्या है? First, sense of belonging. Informal organization provides a sense of belonging and self-worth which is not existing in case of formal organization. It recognizes an individual's personality and boosts his सेल्फ इमेज। तो आपके एक दूसरे की पसंद पे, लाइकिंग पे, उनके पर्सनालिटी के बेस पे आपका एक बनता है आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए क्या होता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है कि आपको सेल्फ वर्थ मिल रही है, तो जिससे कि एक इंडिविजुअल को अपनी पर्सनालिटी को बूस्ट करने का और अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने का जो चांस मिलता है। सेकेंड, रिलीफ फ्रॉम मोनोटनी। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप जब काम करते हैं तो आपका काम रेगुलर वही रूटीन का होता है, सेम जॉब आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो वो मोनोटनी एक बोर्डम सा क्रिएट कर देती है। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उन पे नहीं है, वो आपके सोशलाइजेशन पे बेस्ड है। सो उससे क्या होता है, सोशल सेटिस्फैक्शन मिलता है और मोनोटनी जो काम की है वो नहीं रहती। A formal organization requires employees to perform jobs of routine nature which causes monotony and boredom. An informal organization provides them an opportunity to socialize with each other and improve their social satisfaction. Third, solution of work problems. Members of informal organizations share job knowledge and assist each other in परफॉर्मिंग जॉब्स। तो आपकी जो जॉब प्रॉब्लम्स हैं जो वहाँ पे आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको उनके सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, इनफॉर्मल ग्रुप में बैठ के लोगों को आपस में जब सजेशंस करते हैं तो उन्हें उनके
प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं क्योंकि एक दूसरे को मेंबर्स ग्रुप के असिस्ट करते हैं. सो इससे क्या होता है, उनकी जॉब परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाती है. सो members of informal organizations shares job knowledge and assist each other in performing jobs. Next is protection from outside pressure. Informal organizations provide protection to its members from pressure of top management. They protect members from the arbitrary actions of managers. अगर कुछ भी ऐसा एक्शन है जो कि उनके इंटरेस्ट में नहीं है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स अपने ग्रुप के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में. Next is communication channels. Members of informal organizations share their tensions, joys, and frustrations with each other. They have an outlet for release of their emotions and feelings. They obtain information which is not available through formal channels of communication. Informal groups can also provide feedback to management. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज फास्ट ऑल्सो. तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फास्ट होता है, फीडबैक के लिए आपका है, आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन्स हैं, जॉयज हैं, स्ट्रेस हैं, उन सबको रिलीज करने में हेल्प करता है. और दिस इज अ चैनल थ्रू विच इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी टाइप कैन बी शेयर्ड विद द मेंबर्स, जो कि आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चैनल्स में कभी नहीं बताई जाती. वो वाली इंफॉर्मेशन भी आपको इनफॉर्मल चैनल से मिल जाती है. नेक्स्ट इज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. इट प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. इट प्रोवाइड्स अ स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड लीडरशिप स्किल. तो आपके लीडरशिप स्किल और पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत अच्छा एक आपका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ये इन्वायरमेंट देता है जिससे कि इनोवेशंस और क्रिएटिविटी जो है अपनी मेंटेन कर सकता है एक एम्प्लॉय, एक इंडिविजुअल. सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन एंड क्रिएटिंग देयर लीडरशिप स्किल्स. Then social control. It protects and promotes common interests and values of its members. Members deviate from group norms are censored. तो वैल्यूज़ और इंटरेस्ट लोगों के जो है उनको प्रमोट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रुप जो हमारे हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं. जो अगर कोई भी मेंबर अपने ग्रुप नॉर्म्स को नहीं फॉलो करता, उनसे डेविएट होता है तो उसको सेंसर कर दिया जाता है. इसलिए जनरली द मेंबर्स फॉलो द रूल्स एंड द principles or the norms or the values whatever are being formed by a informal group to be followed. Support to formal organization. It lends flexibility and humanism to formal organization. More competent members of informal organizations can help overcome gaps in the abilities of management. तो क्या है आपकी जो ह्यूमनिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी पे बेस्ड है, राइट. इट इज़ नॉट इनफ्लेक्सिबल. कहीं आपको काम में कहीं एडजस्टमेंट करना है तो ये हेल्पफुल है. और मैनेजमेंट में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है तो इनफॉर्मल ग्रुप के थ्रू एक दूसरे को सजेशंस के देकर जो कॉम्पिटेंट आपके मेंबर्स होते हैं इनफॉर्मल ग्रुप के, वो फॉर्मल ग्रुप के मेंबर्स को सजेशंस देते हैं जिससे कि जो गैप है मैनेजमेंट एबिलिटीज़ में वो फिल अप हो जाता है. Now, what are the limitations or disadvantages of informal organization? Conflicting norms. जो नॉर्म्स सेटअप करते हैं आपके इनफॉर्मल ग्रुप्स, इनके अपने इंडिविजुअल नॉर्म्स होते हैं. एट टाइम्स दे आर बीइंग कॉन्ट्राडिक्टरी टू द नॉर्म्स विच आर बीइंग फॉर्म्ड बाय द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. सो मेन मोटिव तो किसी भी इंडिविजुअल का किसी ग्रुप को ज्वाइन करने का होता है, वो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप और उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करना. तो ये इनफॉर्मल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आपके कई बार नॉर्म्स के कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं, उनके स्टैंडर्ड बिहेवियर परफॉर्मेंस के कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं. तो ऑब्जेक्टिव और गोल्स अचीव करने में जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को मुश्किल होती है. इट क्रिएट्स इट्स ओन नॉर्म्स. These norms may be contrary to the standards of behavior and performance in normal organization, which makes it difficult to achieve the goals of the formal organizations. Second, resistance to change. It generally prefers status quo and existing work routine. Changes are regarded as a threat to its beliefs and values. Therefore, management has to face resistance to new work method. Formal organization जो है वो सक्सेसफुल रहता है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंजेस करे. एज वी हैव
लर्न देयर इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट क्योंकि चेंज होता रहता है तो जो बिजनेस को थोड़ा डायनामिक और थोड़ा फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। बट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है स्ट्रक्चर जो है इनफ्लेक्सिबल होता है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं, वो चेंजेस रिसिस्ट करते हैं, वो चेंजेस नहीं चाहते, वो पुराने मेथड से ही काम करना चाहेंगे, जो रूटीन में है उसी को आपका फॉलो करना चाहते हैं। सो इससे क्या है, आपकी जो है मैनेजमेंट को रेसिस्टेंस फेल करनी पड़ती है जनरली वेन एवर दे वॉन्ट टू लॉन्च न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्टिविटी देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। Then role conflicts. An employee who is a member of both formal and informal group may face conflicts. For example, as a member of formal organization, he may be required to prevent any slacking of work. Formal organization नहीं चाहेगा कोई भी employee work slack करे, कहने के काम को लटकाए या उसको लेट करे. On the other hand, as a member of informal organization, he may be expected to go slow in his work. So ये आपके contradictory conditions हो जाती हैं, जहाँ फॉर्मल चाह रहा है कि आपका वर्कर जो है या एम्प्लॉय है जो काम को इफेक्टिवली और टाइमली और फास्टली स्पीडीली काम करे, वहीं जो इनफॉर्मल चाहता है आपका कि उनका काम जो है स्लो हो, तो यहाँ कन्फ्लिक्ट्स रोल में हो जाता है. देन इज कन्फर्मिटी. An informal organization forces its members to conform to its norms and values even if it is harmful to the interest of the formal organization. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फोर्स करते हैं उनके मेंबर्स को कि नॉर्म्स एंड वैल्यूज उनकी फॉलो करें, और कई बार ये नॉर्म्स और जो वैल्यूज हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकता है. लास्टली द रूमर्स. It leads to generation of rumors which may not being based on facts but on the personal interest of some members. Such rumors are quite detrimental to the interest of organization. तो जनरली इसमें आपके rumors क्रिएट हो जाते हैं कई बारी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं रहते. Now, what is the difference between formal and informal organizations? क्या फर्क है दोनों में? First of all, it is a formation. जैसे हमने पढ़ा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है, राइट. उसमें आपके रूल एंड रेगुलेशंस आपके सेटअप किया जाता है, आपका मैनेजमेंट इसको क्रिएट करता है, जिसमें आपके क्लियरली डिफाइंड जॉब्स एंड आपकी उसकी रिलेशनशिप्स क्लियर होते हैं कि किसका रिलेशन किससे है. बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेलिबरेटली नहीं क्रिएट होता, वो स्पॉन्टेनियसली क्रिएट हो जाता है, राइट, विदाउट द इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट. इट इज बीइंग क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, generally because of the interaction of the people and just because of their likes and dislikes for each other. So वो आपका deliberate हो रहा है formal organization और informal naturally. Formal organization is deliberately designed, established by management for coordinating activities. It is an official system of clearly defined jobs and relationships. Informal organization arises automatically from social interactions among members. It emerges spontaneously and naturally within formal organization. So here organ word by mistake has been added. Second is the purpose. Formal organization का purpose क्या होता है? इस purpose से सेट होता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, सेल्स को बढ़ाना, प्रॉफिट को इंक्रीज करना. बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो है आपका मोटिव होता है कि आपके मेंबर्स की इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को, उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को और एस्टीम और स्टेटस को प्रोटेक्ट करना. So formal organization is established to achieve the organization goals like profit, growth, etc., whereas informal organization is formulated to fulfill social and cultural needs of members. For example, fellow feeling, sense of belonging, esteem, status, etc. Next is structure. Structure क्या है? जनरली आपका जो उसका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, पिरामिडिकल, राइट. टॉप पे जाते जाते वो आपके कम होते जाते हैं मेंबर्स और उनकी पावर्स ज़्यादा होती हैं, और बॉटम में आपके ज़्यादा लोग होते हैं पर उनकी पावर्स कम होती हैं. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ क्लियर एंड वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर विच इज़ पिरामिडिकल शेप. इट कैन बी डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट. इसको हम चार्ट फॉर्म में भी डिपिक्ट कर सकते हैं. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है, कोई पावर्स ऐसी नहीं है.
और इसलिए इसको हम चार्ट फॉर्म में नहीं डाल सकते कि कौन हाई लेवल पे है, कौन लो लेवल पे है. एवरीबडी इज बीइंग कंसीडर्ड एट सिमिलर, इवन दो द पर्सन एट द लोअर लेवल इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन and higher level at the formal organizations are a part of a one single group, so they are being considered as equivalent. So informal organization has no clear and definite structure, and it cannot be shown in the form of a chart. It is a complex network of social relations among members. Fourth is the leadership. Formal organizations, managers are leader of their work group. They acquire the leadership due to their position. पोजीशन के कारण लीडरशिप मिलती है, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अपने जो है मेंबर्स आपस में वॉलंटरली अपना लीडर चुनते हैं. जनरल लीडरशिप विल बी प्रोवाइडेड टू पर्सन हु हैज गुड लीडिंग पावर, राइट, गुड नॉलेज और प्लीजिंग पर्सनैलिटी could be any of the reason. फिफ्थ, कम्युनिकेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो है कम्युनिकेशन एक आपका फिक्स्ड होता है, प्रीडिटरमाइंड होता है, ऑफिशियल लाइंस कम्युनिकेशन की है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन आपका क्लियर होता है. जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है. क्या होता है आपका ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, कभी कहीं से भी आपका किसी से भी इंटरेक्शन हो सकता है. So in the formal organization, the direction and flow of communication is fixed and predetermined. Members are expected to use official lines of communication which are based on authority responsibility relationships. Whereas in informal organization, members do not interact in a fixed manner. They develop their own channel of communication which is called grapevine communication. Next is the focus. Formal organization का focus क्या होता है? Efficiency and of job and function, so that the objectives or goals can be achieved in the best possible way, that is to increase the sale and to increase the profitability. जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस होता है अपने मेंबर्स की नीड्स को और उनके इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करना. सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन emphasizes efficiency of job and functions, whereas informal organization focuses on needs and interest of members. Size. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जनरली हमारी बड़ी होती हैं और सेवरल लेवल्स है हमारे इसमें और मेंबर्स भी ज़्यादा होते हैं, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन छोटी छोटी होती हैं that with a few members. So a formal organization is generally large having several members, whereas informal organization is generally small having few members. Then is stability and durability. The formal organization is relatively more stable and predictable. Jobs, authority, responsibility, relationship and lines of communication are well defined and don't change without the approval of management. So मैनेजमेंट ने एक बार डिफाइन कर दिया, एक बार क्रिएट कर दिया लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप और क्या क्या जॉब करनी है, वो स्टेबल होता है और मैनेजमेंट की मर्जी के बिना उनको चेंज नहीं किया जा सकता. बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में उनके रिलेशंस, एक्टिविटीज़ वो मेंबर्स की नीड, मेंबर्स के इंटरेस्ट और मेंबर्स की विश या उनके इच्छा से बदल सकते हैं. So stability and durability. The formal organization is relatively more stable and predictable. Jobs, authority, responsibility, relationships and lines of communication are well defined and don't change without the approval of management. Whereas in informal organization, activities, relationships and lines of communication change according to the needs of members. So children, we are just finishing the revision of part 2 till here only. So next part I will provide you very soon. Till then, revise this part and like, share and subscribe. Thank you.